اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے فائنل کوئز کی ریویژن کے لیے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ کوئز کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین نمبروں سے اس میں کامیاب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ آپ اپنی ورک بھی کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، بہت سے لوگ کمپلیٹ کر کے بھجوا چکے ہیں، اور اگر آپ کی رہتی ہے تو اس کو بھی کائنڈلی جلد از جلد مکمل کریں اور بھیج دیں۔ ورک بک کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئز میں بہت مدد مل جاتی ہے، کوئز میں کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی وہاں پہ ریوائز ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں آپ نے خود کو انمیوٹ کر کے کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو چیز آپ سے پوچھی جائے اس میں زیادہ شور شرابہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اپنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا مائک اگر غیر ضروری طور پر آپ نے اس کو آن نہیں کرنا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم بہت بہترین طریقے سے آج کی دہرائی کر سکیں۔ چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کورس کا تعارف۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہ آسان اور تیز ترین طریقہ تھا۔ اشاروں کی مدد سے ہم نے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں کے اندر سیکھے الحمدللہ۔ 20 گھنٹے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا ایک دن جو ہے اس سے بھی کم کا وقت ہے، اور 20 گھنٹے صرف کر کے اگر ہم قرآن پاک کے 50% الفاظ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کورس کے مقاصد، سب سے پہلے تو سب سے پہلے جو اہم مقصد ہے کہ ہم یہ دیکھیں قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہمیں خود کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا۔ اس میں ہم نے سیکھا، آپ نے خود دیکھا کہ ان 20 گھنٹوں کے اس کورس کے دوران قرآن پاک سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ پھر دوسرا جو ہمارا مقصد تھا کہ نماز سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے ہم نماز پڑھتے تھے لیکن بس رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات پڑھی، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جب ہم نے نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھ کے، اور جب اب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک لطف آتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ نماز مؤثر ہو جائے۔ الحمدللہ جب ہم نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے ہم نماز کے تمام ارکان جو ہیں ان کو ادا کرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر قرآن کے ساتھ تعلق کہ زندگی میں قرآن کو لانے کا طریقہ، قرآن پاک ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو صرف ایک اس لیے نہیں نازل کیا گیا تھا کہ جو ہم آج کل ہمارے ہاں ایک پورا یہ ٹرینڈ ہے کہ بس قرآن پاک کو فوت ہو گیا ہم نکالتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اتنے ختم کر لیں، ٹھیک ہے وہ بھی کریں، لیکن قرآن پاک ہمارے لیے کتاب تھی ہدایات کی، کہ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس کے ساتھ جب ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہم زندگیوں میں اس کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں جب ہم نے قرآن کو پڑھا سمجھا تو ہم نیک اعمال کی طرف مائل ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملتی ہے ہمیں کہ ہم بہت اچھے عمدہ کام کریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ پھر ہم نے تقریباً عربی بول چال کے 100 سادہ سے آسان سے جملے سیکھے الحمدللہ۔ اس میں ہمارا جو تھا سلیبس تھا، اس میں ہم نے سورۃ فاتحہ، سورۃ العصر، النصر، کافرون، اخلاص و فلق وغیرہ سیکھی ہیں الحمدللہ۔ اذان، دعائیں وضو کے بعد کی، رکوع سجود، تحیات، درود شریف وغیرہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کی دہرائی کریں گے جلدی جلدی تاکہ دو چیزیں ہمیں ان کا وہ ذہن میں آ جائے اور ہمیں ہمارا جو ہے کوئز بہت اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ مجھے اس میں ساتھ دہراتے جائیں گے میننگز کو۔ ہاں نہ پاک ہے تو، ہے تو، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، وابی حمدی کا اس کے ٹکڑے کریں، کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 4۔ جی کون کون سے؟ اور
وا بی ہم ہم کا حمزہ چار کا جی ماشاءاللہ، وا بی ہم اور کا 4 ٹکڑے ہیں. اچھا ہم جو ہے اس کا ہے کہ یہ خوبیوں کی تعریف ہوتی ہے اور تسبیح جو ہوتی ہے وہ نقائص کی نفی ہے. حمد میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں ہم وہ بتاتے ہیں، اور تسبیح جو ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نقص یہ خرابیاں نہیں ہیں، ان کے نقائص کی نفی. تبارکا، تبارکا اس کا کیا معنی ہے؟ اور برکت والا ہے. برکت اور والا برکت والا ہے. اسمو کا اس کے ٹکڑے کریں. 2 ہوں گے، اسم دو اور ہوں کا. گے، اسم اور کا. جی ماشاءاللہ زبردست. وتعالی معنی کیا ہے اس کا؟ اور اور بلند و بالا. اور بلند و بالا ہے. جدو کا تیری بزرگی. تیری بزرگی. اور ولا الہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ وا او لا نہیں الہ. واو لا اور الہ. جی وا 4 لا اور الہ. ماشاءاللہ. غیر کا سوائے تیرے. تیرے. 2 ٹکڑے ہوں گے. سوائے تیرے. زبردست. اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں بتائیں گے کہ ہم نے تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ میں کل کتنی عادات، اچھی عادات جو ہیں وہ ہم نے سیکھی ہیں. 12. 12. زبردست ماشاءاللہ. آج ہم ابھی ساتھ ساتھ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، ذرا میرے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہو جائے. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں. زبردست. باللہ اس کے ٹکڑے کریں. اللہ باللہ کی. کے ٹکڑے کریں. اور اللہ. ہی اور اللہ 2 ٹکڑے ہوں اور گے. اللہ. ہی اور اللہ. اور من الشیطان الرجیم. الرجیم کا کیا معنی ہے؟ مردود اتارا گیا. اتارا ہوا. جی اچھا، اس سے ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی؟ سب سے پہلی عادت تھی اللہ کی پناہ میں آنا. جی اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی سیفٹی فرسٹ، کہ ہم نے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں. ہم نے پہلے اپنی سیفٹی کرنی ہے، شیطان سے اپنے آپ کو لینا ہے. تو یہ ہم نے پہلی عادت سیکھی. بسمی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے ہوں گے. 2 ٹکڑے ہوں گے. بی اور اسم. ماشاءاللہ. الرحمن اور الرحیم. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ جو بہت مہربان ہے. مہربان. پرجوش رحم، شدت والا رحم کرنے والا. پرجوش رحم والا. اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. جی مسلسل. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، رحمتیں بھیجنے والا. رحمان شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. زبردست. الحمد. الحمد اس کا کیا معنی ہے؟ تمام تمام تعریف تعریفیں اور شکر. جی حمد کے ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں. کون کون سے؟ تعریف اور شکر. تعریفیں اور تعریف اور شکر. زبردست. للہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 لی اور اللہ. لی اور اللہ. للہ اللہ کے لیے. جی زبردست. عالمین. عالمین کا واحد کون بتائے گا مجھے؟ عالم. 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 ٹھیک ہے. عالمین اس کا واحد عالم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں. تمام جہاں. ٹھیک ہے. یہ عالم ہے اور عالم جو ہے نا وہ اور لفظ ہے. ٹھیک ہے. عالم ہوتا ہے جاننے والا اور عالم جہاں. الرحمن. اس سے ہم نے کون سی عادت سیکھی؟ الحمدللہ رب اللہ. بسم اللہ سے بتایا چلیں گے، وہ ہماری رہ گئی ہیں 2 عادات. کون سی تھی بسم اللہ سے؟ ہر کام سے پہلے ہر بسم اللہ کام سے پڑھنا. پہلے بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے. جی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان شروع رکھنا کیا جائے. الرحمن الرحیم. جی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں اچھا گمان رکھنا. الحمدللہ وہ تھا اس سے الرحیم. الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے سیکھا کہ خوب علم حاصل کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، اور پھر رب العالمین کے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کا مختلف مواقعوں کے اوپر اس کا الحمد کا یہ ہے. اور رحمان اور رحیم آگے اس سے ہے کہ رحم کرنا چاہیے ہمیں دوسروں پر، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. مالکی کا کیا مطلب ہے؟ مالک ہے. مالک ہے. مالک ہے. یوم دین کا، آخرت کا. دین. الدین. دین کے کون سے 2 معنی ہیں؟ بدلہ اور نظام اور زندگی. زندگی کا نظام.
माशाल्लाह, जबरदस्त। 2 हमने मानी पढ़े, बदला और जिंदगी का निजाम। और इससे हमने ये देखा मालिक की यौम दीन से जो हमने आदत सीखी थी वो ये थी कि हमें हर काम जो है वो आखिरत को सामने रख प्लान करना चाहिए। इयाका का क्या मतलब है? सिर्फ तेरी ही। और नाबुदू हम इबादत करते हैं। वा इयाका के टुकड़े बताएं। 2 टुकड़े हैं, जी, 3 टुकड़े माशाल्लाह। वा और इया सिर्फ का तेरी। नस्ताइन हम मदद करते हैं। या के 2 टुकड़े 3 टुकड़े हम हम मदद चाहते हैं। हम मदद चाहते हैं। अच्छा, इससे कौन सी आदत सीखी हमने अच्छी? हर काम में इबादत की नियत करनी चाहिए और जबरदस्त। हर चीज में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। टुकड़े करें। इहदीना, इसके टुकड़े। इहदीना, और इसका मतलब माशाल्लाह, मतलब इसका क्या होता है? ना हमें हिदायत, ना हमें हिदायत दे। जबरदस्त। अस्सिरात, रास्ते की। रास्ता। अच्छा, इससे कौन सी हमने आदत सीखी? सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला से हिदायत की तलब करना। सीधे अल्लाह रास्ते ताला पे से हिदायत तलब की जाए, सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मांगी जाए। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अनअमता, इसका क्या मतलब है? इनाम तूने इनाम किया। अच्छा, इनाम किन लोगों को पर किया गया था? 4 कौन बताएगा? अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, शोहदा और सालिहीन। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने भी बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन। वेरी गुड। हम कौन सी अच्छी आदत सीखते हैं? हमेशा अच्छे मॉडल के तरीकाकार पर चलना चाहिए। माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही। हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए। गैर नहीं। और अच्छा, मुझे कोई अल-मग़दूब और द्वालिन में फर्क बताएगा? मग़दूब जिन पर गजब किया गया था, और द्वालिन जो गुमराह हुए, जिनको था लेकिन गुमराह हुए, जानते हुए गुमराह हुए। है कि मग़दूब वो लोग हैं जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, और द्वालीन वो हैं जो सही बात जाने बगैर ही अमल करते रहे। और ये दोनों गजब का शिकार। इसको आपने याद रखना। इससे हमने कौन सी अच्छी आदत सीखी थी? बुरे मॉडल या नमूने से दूर भागना, मॉडल से दूर भागना, दुआ करना कि अल्लाह की पैरवी से बचना। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे सूरत फातिहा का खुलासा कौन बताएगा एक जुमले में कि क्या खुलासा है इसका? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, ये इसका खुलासा है। अजान की तरफ। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। अच्छा, इसका जमा कैसे बनेगा अशहदु का? जी, अशहदु को प्लूरल जमा कैसे बनाएंगे? नशहदु। जबरदस्ती, नशहदु। अन का मतलब के इल्ला, कोई माबूद नहीं है। इल्ला सवाए या मगर। इलाहा का क्या मतलब है? माबूद जिसकी इबादत की जाए। इलाहा के 3 माने कौन से पढ़े हमने? इलाहा के 3 माने चले पूजा और बता देती हूँ। जिसकी पूजा परस्तिश की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, जिसका हुक्म माना जाए और इताअत की जाए। अन्ना, अन्ना क्या मतलब है? बेशक। नहीं, करें यही जवाब। बेशक दोनों है। जबरदस्त। के याद रखना है कि अन और अन्ना दोनों का मतलब होता है के। अन और अन्ना के, और इन्ना जो होता है जब देर है तो वो, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अन और अन्ना के। हैया का क्या मतलब है?
आओ आओ सर आओ नमाज की सलात आओ तरफ, भैया आओ भैया अल्लाह की तरफ सलावात और फलाह सलाह की तरफ, फलाह नमाज नमाज की तरफ, नमाज, नहीं, फलाह फलाह का क्या भैया मतलब? फलाह कामयाबी, भलाई भलाई, 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 कामयाबी, कामयाबी की तरफ, माशाल्लाह। कामयाबी की तरफ। कामयाबी। अजान के किन अल्फाज में हमें ये बात की गई है कि अल्लाह ताला की तरफ और उसको बड़ा मानकर, लेकिन अगर तुम अल्लाह ताला को बड़ा मानकर उसकी तरफ नहीं भी आते तो अल्लाह ताला की बड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से कलमात इस बात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आखिरी जो कलमात हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमात हमें बताते हैं कि अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं भी आते उसकी बड़ाई की पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हमारा अपना ही होगा। अजान का खुलासा, अजान का खुलासा बता दें। अल्लाह ताला की तरफ से महफूज में मुलाकात और आपके कामयाबी सामने के लिए लिखा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत और ऐलान। जी, इसको याद रखना है आपने, आपसे खुलासे पूछे जा सकते हैं मुख्तलिफ सूरतों के अजान, तो ये बात याद रखनी है। फजर की अजान में कौन से कलमात का इजाफा किया जाता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। माशाअल्लाह जी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और नौम का मानी क्या है? नींद, 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 नींद से बेहतर। अच्छा, इसमें नींद जी, और ये कितनी मरतबा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं? 2 बार। 2 बार। माशाल्लाह, मुझे लगता है कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो काइंडली बाकी लोग भी आगे आए ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। अकामत के अल्फाज हैं वो कौन से हैं? कद का मफहूम मानी क्या है? कद का और कामत खड़ी हो गई, नमाज की तरफ, खड़ी होकर नमाज पढ़ना, खड़ी हो गई, नमाज की तरफ नहीं, कामत खड़ी हो गई, नमाज नमाज खड़ी। ये अल्फाज कितनी दफा बोले जाते हैं? 2 बार। 2 मरतबा। अच्छा, अकामत में और अजान में क्या फर्क है? अकामत ये जो मस्जिद में अंदर लोग मौजूद होते हैं उनको बुलाया जाता है, नमाज खड़ी होती है। मस्जिद में और मौजूद अजान जो है वो मस्जिद सारे बाहर भी मस्जिद में जो लोग होते हैं कि बताया जाता है टाइम हो गया। माशाल्लाह, जबरदस्त। अजान है, अजान में सबको बुलाया जा रहा है जो बाहर हैं कि आ जाए, नमाज का वक्त हो गया। और अकामत के जमात खड़ी हो गई है, जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं उनको अटेंटिव कि आप आ जाए, जमात खड़ी होगी। जबरदस्त, माशाल्लाह। वजू से पहले की इसमें का क्या मानी है? सिस्टर आपकी ये स्क्रीन छोटी नजर आ रही है, इसको बड़ा करने काइंडली। क्या सब लोगों को छोटी नजर आ रही है? नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल अप डाउन कर लें फिर काइंडली। चलें जी, बेइज्जती का मतलब? बेइज्जती नाम से। और इसके कितने टुकड़े हैं? इसके 2। हम जल्दी से ये वजू के बाद की दुआ देख लेते हैं। इसमें हम तकरीबन काफी सारे अल्फाज दोहरा चुके हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, वादाहू, वो अकेला है, वादाहू, वो अकेला है, वो अकेला है। और ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, कोई शरीक। अब्दुहू, तो उसके बंदे, अब्दुहू उसके बंदे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अब्दुहू का इजाफा क्यों किया गया? ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी अल्लाह के ही बंदे हैं, वो तमाम बंदों में अफजल हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बंदे हैं। जबरदस्त, बंदा कहा गया ताकि कोई दरवाजा जो है ना वो बंद कर दिया। और लोग ये समझते थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिसकंसेप्शन था, उसको खत्म करने के लिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो तब बंदे और रसूल हैं जी। अब हम वजू के बाद, अच्छा हम ये के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा अजअलनी, इसके तरह टुकड़े करें, अजअलनी,
इजअल और नी, दो नहीं बना दे मुझे। जबरदस्ती, तवाबीन, खूब तौबा मैडम कितने हुए टुकड़े? बार बार तौबा करने वाला। हाँ इजअलनी के 2 टुकड़े हुए, इजअल और नी मुझे। और तवाबीन का वाहिद कौन बताएगा? तवाब, 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 माशाअल्लाह, तवाब, जबरदस्त। और मुतताहिरीन का मानी क्या है? पाक पाक साफ रहने रहने वाले। जी। और मुतताहिरीन का वाहिद कौन बताएगा मुझे? मुतहर, मुतताहिर, मुतताहर, जबरदस्त। मुतहर। अच्छा, जो वजू के बाद की दुआएं हैं इनके बारे में कोई खास? जो पढ़ता है उसके लिए 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दाखिल होता है। शिर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया गया। नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। किसी में से भी दाखिल हो सकता है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं रुकू की तस्बीह की तरफ। इसमें सुबहाना का मतलब पाक है, मेरा रब, रब अजीम, अजमत वाला। इसमें कौन सी 4 बातें आपके ज़हन में आ रही हैं? पाक है, मेरा रब है, अजमत वाला है, हिफाजत करता है, परवरिश करता है, वो जरे जरे की परवरिश करने वाला है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई ऐप चलो ठीक है, जबरदस्त, नहीं, नाइंसाफी करने ऐसी वाला बड़ाई वाला जिसको कोई नहीं झुका सकता है, यानी ठीक हमारी है, हिफाजत जबरदस्त। करता है, परवरिश करता है। 1 मिनट में आपको बताती हूँ, ठीक है। पहली है कि अल्लाह ताला पाक है, दूसरी इसमें बात है कि वो रब है, तीसरी बात रब्बी, मेरा रब है, और चौथी बात कि वो अजमत वाला है, ठीक है। ये 4 बातें आपने याद रखनी है। वो पाक है, वो रब है, मेरा रब है और अजमत वाला है। सामिया, इसका क्या मतलब है? सुनली, सामिया उसने सुनी, अल्लाह ने। लेमन का मानी, लेमन इसकी, उसकी, जिसने। लेमन 2 टुकड़े ली और मन। ली का मतलब तो उसके लिए नहीं होगा, लिए नहीं। देखिए वो यहाँ पर जब हम अरबी में, उर्दू में भी मानी बाजू का तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो ली उसकी, जिसने। हामिदाहू, तारीफ की इसकी, हामिदा कितने होंगे? 2, हामिदा और माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें भी जो है 4 बातें हैं उसमें जो हमने सजदे में आगे। अच्छा, रुकू से उठते की दुआ, रब्बाना, करना है हमारे रब, हमारे रब, अल्लाह तेरे लिए। पढ़ा था रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बु, इसमें हरफे निदा है, ए हमारे रब। ए भी शामिल हो जाता है। ए हमारे रब, वाला तेरे ही लिए, और तेरे ही लिए, वाला का और तेरे लिए। तेरे ही लिए। रुकू से उठते हुए की दुआ, मिल्ला समावात, समानी क्या है? आसमानों के भरने के बराबर, आसमानों के भरने के बराबर। बैनहुमा, दरमियान उन दोनों उनके दरमियान, उन दोनों के दरमियान, दरमियान में। शेता, तू चाहे, तू चाहे, तू चाहे। और तू, इसके बाद मैडम उसके स्लाइड बाद। खत्म हो गई। स्लाइड सिस्टर खत्म हो गई है, स्लाइड शेयर करें।
एक मिनट, उसमें मेरा नेट दरमियान में हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब आ गई जी। अतहियात, अतहियात का मानी क्या है? कौली बात, सभी कौली बातें, सभी कौली सभी कौली इबादतें। और सलावात सभी बदनी सभी इबादत, सभी सभी बदनी बातें, मदनी बातें, बदनी बातें। और तय्यबात, माली सभी बात, माली माली बातें। बातें। इन तीनों का मफहूम आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अतहियात कौली बातें, सलावात बदनी बातें, और तय्यबात माली बातें। अतहियात में नमाज, जिक्र, तिलावत, नसीहत करना, मतलब ये सारी बातें आती हैं। और सलावात जो बदनी बातें हैं उसमें नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, तालीम, दावत, तबलीग। और तय्यबात जो है उसमें माली बातें हैं, जैसे हज, ज़कात, सदका, खैरात वगैरह। तो इनको आपने सदका खैरात, इनको आपने तो ध्यान सदका से सदका तीनों का फितर फर्क आपको वगैरह। ज़हन में होना चाहिए। अलैका का मतलब आप पर, आप पर, आप आप पर। अय्युहा नबिय्यु, इसका क्या मतलब है? ए नबी, नबी, नबी ए सल्लल्लाहु नबी, अलैहि वसल्लम। बरकातुहु, इसके टुकड़े करें। और बरकत, बरका बरका, बरकत और हु, तीन टुकड़े हैं इसके। जी, बरकत वा and हु। और बरकात, वाह तीन होंगे, वाह और बरकातु के दो, जी, वाह एक वाह और बरकातु दो और हो तीन। हु अलग है। अलैना का मतलब हम पर, हम पर, हम पर। इबाद का मतलब इबादत, बंदे। अल्लाह के बंदा, बंदों की जमा, बंदे की जमा, अब की जमा इबाद, बंदा। और इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदे। जी, बंदे। अब की जमा इबाद, माशाल्लाह। स्वालिहीन, स्वालिहीन, नेक, जो नेक नेक बंदे। हैं, नेक लोग। जी, जो नेक हैं। इसमें आगे तशद्दुद में अगला जो है दुआ, वो यही अशहदु अन, ये सारा इसको हम देख चुके हैं। अशहदु में गवाही देता हूँ। अन के और अन्ना दोनों याद रखने हैं कि अब्दुहु बंदे और रसूलहु उसके रसूल। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत रहमत भेज। रहमत भेज। अल्लाह। अच्छा, मुझे एक जरा सा फर्क है, ये बता दें कि सल्ली दो मानी है इसके, नमाज पढ़ और रहमत भेज। हमें कैसे पता चलेगा नमाज पढ़ कहाँ आना है? ये अल्लाह हरूफ के जर, साथ आएगा हरूफ तो जर के बदलने से। रहमत भेज जाएगा, हर्फ जर से हमें पता चलेगा। सल्ली, एक बात याद रखनी है कि सल्ली नमाज पढ़, और सल्ली अला, जब सल्ली के आगे हम अला लगाते हैं उसका मतलब होता है रहमत भेज। ठीक है, नमाज पढ़ और सल्ली अला, रहमत भेज। रहमत भेज। सल्लैता, भेजी रहमत भेजी रहमत तूने, तूने रहमत भेजी भेज। रहमत तूने। हमीदुन, तारीफ के तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल। और मजीदुन, बुजुर्गी बुजुर्गी वाला, के काबिल, बुजुर्गी वाला। बारिक, बरकत दे, बरकत अता फरमा, बरकत अता फरमा। और बारकता, तूने बरकत बरकत अता अता फरमाई, की तूने, ताकि उन्हें बरकत अता की। और आल इब्राहिम, अच्छा आल के कौन से मानी है? मुझे आल के मानी बताएं। खानदान वाले, खानदान का यहाँ पे आल, उम्मत खानदान, सिर्फ खानदान वाले, और नहीं, फॉलोअर, इत्तबा करने वाले। और औलादों, पैरवी करने वाले, इत्तबा करने वाले, खानदान वाले इसमें आते हैं। और इन्ना का मतलब बेशक बेशक आप, शक, बेशक तुम, बेशक आप या तू जो भी है। रब्बाना, ए हमारे रब, ए मेरे रब, आती ना के टुकड़े करें। आती आती ना, और ना दे हमें दो टुकड़े, आती दे ना हमें। और हाँ, दो, हसना, तीन, हसनातन, भलाई, हसना, भलाई, भलाइयाँ, भलाइयाँ, भलाई। नेकियां। और बाकी ना के टुकड़े करें। बाकी ना दो, और ये दो, और ना, तीन टुकड़े, वाह और की बचा ना हमें। ये तीन टुकड़े, वा, की और ना, जबरदस्त। और अन्नार का मानी क्या है? आग,
आइन्नी, नमाज के बाद पढ़ने की एक और दुआ है मदद आइन्नी, फरमा इसका मतलब मदद फरमा मेरी, आइन और नी मदद फरमा मेरी, जिक्रिका तेरा तेरी जिक्र। याद करने पर तेरी याद करने करने पर, पर, तेरी याद करने पर, शुक्रिका और तेरा और शुक्र तेरा करने शुक्र करने कर, पर, शुक्र और करने तेरा पर, शुक्र करने पर, और हुस्नी और तेरी अच्छी अच्छी इबादत, हुसन अच्छी इबादत अच्छी करने एहसन, पर, और इबादती का तेरी इबादत इबादत कर। तेरी इबादत तेरी इबादत, माशाल्लाह जबरदस्त। उम्मीद है आपकी रिवीजन में कुछ फर्क पड़ा होगा, कुछ बेहतरी आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपना ये कोर्स मुकम्मल आमीन। करें और आपके बहुत अच्छे नंबर आए। अल्लाह ताला आपकी मदद करें और हम सबकी भी मदद करें। आमीन। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, इसको समझने, इस पर गौर करने, इस पर अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप आमीन। सबका हामी और नासिर और जज़ाकल्लाह खैर।